हरे कृष्णा। आज का मेरा टॉपिक है स्लेव ऑफ सेंसेस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वी विल चैंट प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 8। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपतनमृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। Word to word meaning: na, do not; he, certainly; prapashyami, I see; mam, my; apanudyat, they can drive away; yat, tat; shokam, lamentation; uchchoshanam, drying up; indriyanam, of the senses; avapya, achieving; bhumau, on the earth; asapatanam, without rival; riddham, prosperous; rajyam, kingdom; suranam, of the demigods; api, even; cha, also; adhipatyam, supremacy. Translation: I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to destroy it even if I win an unrivaled kingdom on the earth with sovereignty like that of demigods in heaven. Purport by Srila Prabhupada. Although Arjun was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, Lord Shri Krishna. He could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which are drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can only be given by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है. It doesn't matter whether a person is a Vipra, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the renounced order of life. If he is master in the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master. So, without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in Vedic literature, Shat karma nipuna vipro mantra tantra visharadaha avashnav guru nashashyad vaishnavo shvapacho guru. A scholarly Brahman, expert in all subjects of Vedic knowledge, is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava, or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in a family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. The problem of material existence, birth, old age, disease, and death cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all facilities of life, which are full of wealth and economically developed, yet the problem of material existence are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna, or the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. If economic development and material comforts could drive away one's lamentation for family, social, national, or international inabilities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on the earth, or supremacy like that of the demigods in the heavenly planets, would not be able to drive away his lamentations. He sought therefore refuge in the Krishna consciousness, and that is the right path for peace and harmony. Economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the catalysm of material nature. Even elevation into the higher planetary situation, as men are now seeking a place on the moon planet, can also be finished at one stroke. The Bhagavad Gita confirms this. Shne punya martalokam vishanti.
When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest state of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentation. Therefore, if we want to curb lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna as Arjuna is seeking to do. So Arjuna asked Krishna to solve his problems definitely, and that is the way of Krishna consciousness. ॐ अज्ञानं तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता का जो इससे पहले वाला वर्ष था, 7वां वर्ष था, उसमें हमने देखा था कि जो अर्जुन है वो अपने धर्म को लेकर पूर्ण रूप से भ्रमित हो गया था, और ऐसी भ्रमित कंडीशन में वो श्री कृष्ण के पास जाता है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, उनको अपना गुरु बना लेता है। इसके बाद इस वाले श्लोक में अर्जुन जो है अपने सिम्टम्स श्री कृष्ण को बता रहा है। जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो मरीज सबसे पहले उनको अपने सिम्टम्स बताता है, और सिम्टम्स समझने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करता है। ऐसे ही जगत गुरु श्री कृष्ण की शरण में जाने के बाद जो अर्जुन है वो अपने सारे सिम्टम्स श्री कृष्ण को बता रहे हैं, ताकि वो उनका सही मार्गदर्शन कर सकें। और वो सिम्टम्स क्या हैं? अर्जुन बोल रहे हैं, ना ही प्रपश्यामी ममापनुद्यात यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। उच्छोषणम इंद्रियाणाम, ये जो इंद्रियां हैं मुझे जला रही हैं और मुझे इससे बाहर निकल कर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो अब आप ही मुझे दृढ़ करके निश्चित रूप से बताएं मैं कौन सा मार्ग अपनाऊँ। तो इसमें यहाँ पे सेंसेस के बारे में बताया गया है, इंद्रियों के बारे में बताया गया है। 10 प्रकार की इंद्रियां हैं और एक मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारी जो आँखें हो गई, नाक हो गई, मुँह हो गया, कर्ण हो गए, ऐसी पैर हो गए, हाथ हो गए, स्टमक हो गया, हमारा जो रेक्टम हो गया और जेनाइटल्स हो गए। इस प्रकार की ये 10 इंद्रियां हैं। हम जब जो है इसी में ही बंधे हुए हैं, और सबसे बड़ा हमारा मन, माइंड, इससे बड़ी कोई सारी इंद्रियां इसी के कंट्रोल में आती हैं। जो माइंड बोलता है सब इंद्रियां उसी रास्ते पे चल देती हैं। इसलिए अस्पतनम, अस्पतनी होता है कि को वाइफ्स मतलब जिसकी एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी वाइफ्स हैं। अब वो एक वाइफ बोलती है मेरे साथ चलो, दूसरी बोलती है मेरे साथ चलो, तीसरी बोलती है मेरे साथ चलो। ऐसे ही हम सब इंद्रियों के खेल में फंसे हुए हैं। नेत्र बोलते हैं, आंखें बोलते हैं कि जाके कोई वीडियो देख के आओ, कान बोलते हैं कोई अच्छा गाना सुनो, जीवा बोलती है कोई अच्छा भोजन प्राप्त पाओ। ऐसे ही करके हमारे पास ये सारी चीज़ें जो सारी इंद्रियां हैं हमको नचा रही हैं, इसमें हम फंसे हुए हैं। तो इनसे निकलने का रास्ता हमें सिर्फ एक गुरु ही बता सकता है, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी बलवान है। इंद्रियाणी ही प्रमाथिनी हरंती प्रसभम बना। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों तक का जो है ये मन को हर लेती हैं। चाहे परिस्थिति, हमारी तो परिस्थिति जो है बिल्कुल कलयुग की तो एकदम 3rd क्लास है, लेकिन इससे पहले जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जैसे विश्वामित्र का जो एग्जाम्पल है, उसमें जो विश्वामित्र कई वर्षों से अपना ध्यान एकाग्रित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेनका ही एक पायल की झनकार बजी और उनका जो ध्यान है वो टूट गया। इसके विपरीत जो अर्जुन है वो स्वर्ग लोग गए अज्ञातवास पे, और अज्ञातवास में अप्सरा ने उनको संभोग का एक तरह से सुझाव दिया, लेकिन श्री अर्जुन ने साफ मना कर दिया। तो यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि अर्जुन के पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी पूर्ण रूप से थी, लेकिन अभी ये परिस्थिति बनी है, ये जो श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई है, ताकि अर्जुन उनसे प्रश्न कर सके, आध्यात्मिक प्रश्न कर सके और श्री कृष्ण उनके उत्तर दे सके। तो ये प्रश्न और उत्तर, ऐसे गुरु और शिष्य के बीच के जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो पूरे जन कल्याण के लिए होते हैं। तो आज भी ये भगवद गीता है हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जो भी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके जो गाइड है वो भगवद गीता ही है। तो ऐसे प्रश्न उत्तर से सारे समाज का कल्याण होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कुछ समय के लिए अर्जुन के ज्ञान को हर लिया, ताकि वो उनसे प्रश्न कर सके, उनके शरण में जाए और प्रश्न उत्तर से सारे जनों का कल्याण हो सके। ये जो इंद्रियां हैं बड़ी ही स्ट्रांग हैं, इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। कभी कभार हम हल्की भी से लापरवाही होते हैं तो ये तुरंत हमारा पतन का कारण बन सकती है। तो हम ऊपर से कभी भी नीचे गिर सकते हैं, तो अगर हम इंद्रियों के बहकावे में आ गए, इंद्रियों के कंट्रोल में आ गए तो। इसलिए हमें सदैव आध्यात्मिक उन्नति में जो भी चल रहा है उनको इंद्रियों के विषयों से सदैव अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। सदैव एक तरह से कॉन्शियस रहना चाहिए कि हमसे कोई गलत कार्य ना हो जाए।
तो इसमें बताया कि मटेरियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही की जाती है। अनकंट्रोल इंद्रियों के द्वारा मटेरियल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वही हमारी परप्लेक्सिटी और कन्फ्यूज़न का कारण बनती है। जैसे यहाँ पे जो अर्जुन है परप्लेक्स क्यों हुआ, क्योंकि एकदम से उसकी इंद्रियाँ उसके कंट्रोल से बाहर चली गई और उसको एक तरह से थका दिया, उसको एकदम से हरा दिया। तो इसलिए जो हराने वाला कौन है, इंद्रियाँ ही हैं उसका मन है स्वयं का। तो ये मन बड़ा बलवान है। इस मन के जब तक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को नहीं अपनाएंगे, हम जब तक परमेश्वर को नहीं समझेंगे, श्री कृष्ण को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, हम मन ना होके उससे एक अलग है, हम परमात्मा के अंश हैं, तब तक हम मन पे कंट्रोल विजय पाना असंभव है। किसी से बड़े बड़े ऋषि मुनि तो का पतन होता है, तो हम तो कलयुग के छोटे से प्राणी हैं, हमारा क्या होगा। तो इस परिस्थिति में हमें सदैव कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब सदैव कृष्ण के ही चिंतन में लगे रहना चाहिए। इससे हमारी भगवत प्राप्ति भी होगी और ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये भी एक तरह से पूर्ण रूप से आसान हो सकेगा। इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं कि पदम पदम यद विबुधाम न तेषाम। तो ये संसार में हर पद पद पर कठिनाइयाँ हैं, हर पग पग पर कुछ ना कुछ घटना घट सकती है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें हर क्षण कृष्ण कॉन्शियस होने की कोशिश करनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत होने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा श्री कृष्ण के कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। इसलिए ये जो है इसमें जो परप्लेक्सिटीज़ जो होती हैं एक तरह से फॉरेस्ट फायर के समान है। जो जंगल में जो आग को कोई लगाता नहीं है, लेकिन जंगल में जब आग लगती है तो वो रुकती भी नहीं, उस सतह बढ़ती चली जाती है। तो यदि हम अपनी जो भौतिक इंद्रियां हैं इसके अनुसार मटेरियल एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये सारी मटेरियल एक्टिविटीज़ हमें अंत में परप्लेक्स ही करेंगी, कन्फ्यूज़ ही करेंगी। इसके विपरीत यदि हम आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, आध्यात्मिक इंद्रियों की तरफ ध्यान देते हैं, यतेंद्रियम, ये जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, हम जो आत्मा है उसके एक आध्यात्मिक इंद्रियां भी हैं और आध्यात्मिक इंद्रियां जो हैं वो श्री कृष्ण की सेवा में ही लगती हैं। यदि हम इन भौतिक इंद्रियों को भी श्री कृष्ण की सेवा लगाते हैं तो ये भी अपने आप आध्यात्मिक हो जाती है। जैसे एक तार रहता है, तार में बिजली नहीं होती, लेकिन जैसे आप उसको बिजली से लगाएंगे तो बिजली और तार में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि हम इन इंद्रियों को भी श्री कृष्ण की सेवा में लगा दें, नेत्र को देखें तो श्री कृष्ण का अर्च विग्रह देखें, कर्ण सुने तो भगवान के भजन सुने, अगर भोजन पाना है तो श्री कृष्ण का प्रसादम पाएँ, तो ऐसे करके हम इन सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि अर्जुन की जो इंद्रियां थी वो वास्तविक कंट्रोल में थी और बनस्पत विश्वामित्र के। इसलिए अगर हम श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे, श्री कृष्ण के भक्त बनेंगे और अपनी सारी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाएंगे तो हमारी ये इंद्रियां भी ट्रांसेंडेंटल हो जाएंगी। लेकिन यदि हम इन इंद्रियों के अनुसार कार्य करेंगे, इंद्रियां जो चाह रही है उसे विषय भोग में लगाएंगे, तो हमारा जो ये वाला जीवन भी नर्क में होता है और हमारा आने वाला जीवन भी नर्क में ही हो जाता है। इसलिए ये संसार है, यहाँ पे पदम पदम यद विविधाम न तेषाम, हर पग पर विविधा है, हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो भगवान ने हमें ये मनुष्य देह दिया है तो हमें इस देह को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, परमेश्वर की सेवा में लगाना चाहिए। यदि हम इसको परमेश्वर की सेवा में लगा देंगे तो ये हमारी सारी इंद्रियां ट्रांसेंडेंटल हो जाएंगी, आध्यात्मिक हो जाएंगी। तो भगवान ने इस संसार को क्या बताया, संसार दावा नल लीला लोका, मतलब इस संसार में जो आग है, दावा नल है, उसको कोई भी लगाता नहीं है, ये अपने आप लगती है और इसे अपने आप फैल भी जाती है। इसलिए लेकिन इसको रोक कौन सकता है, इसको वही व्यक्ति रोक सकता है जो इस संसार से परे है। इसलिए घनात्मा बादल जो होते हैं, बादल से जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक कोई जंगल की आग को बुझा नहीं सकता। इसी प्रकार यदि हम जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो जो इंद्रियां हमको जला रही हैं इससे हमें शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम गुरु की शरण में जाके भगवान को अपने आप को समर्पित ना कर दें। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि चाहे से आपके पास कितनी भी मंडे नॉलेज हो, चाहे आपके पास कितना भी सांसारिक ज्ञान हो, ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। परिस्थितियों में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि सारा ज्ञान धूमिल हो जाता है, कोई भी काम नहीं। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक ही विद्या है जो हमारे काम में आती है, वो है श्री कृष्ण की भगवद गीता। ये ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को प्रैक्टिकल लाइफ जीने का तरीका सिखाता है। और इस ज्ञान के बिना यदि हमारे पास सारी विद्या है लेकिन ये भगवद गीता का ज्ञान नहीं है, भगवद गीता की विद्या नहीं है, तो वो सारा ज्ञान कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन यदि हमारे पास भगवद गीता का ज्ञान है तो इस जन्म में भी ये हमारी मदद करता है और आने वाले जो जन्म है उसमें भी हमारी मदद करता है। तो यदि हम हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अपने मन के अनुसार करेंगे, अपने इंद्रियों के अनुसार करेंगे और विषय भोग में इसको लगाएंगे तो हम सदैव परप्लेक्स रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे और हमेशा जलते रहेंगे। तो इसलिए हमें सदैव अपनी जो इंद्रियां हैं उसको श्री कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। तो ये जो ज्ञान है वास्तव में प्रैक्टिकल ज्ञान है और आपके जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपको अलग से उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ भगवद गीता पढ़ेंगे और गुरु की देख रेख में पढ़ेंगे तो
तो आप स्वतः ही अपने आप को समझ जाएंगे, श्री कृष्ण को समझ जाएंगे, परमेश्वर को समझ जाएंगे, उनसे हमारा क्या संबंध है ये समझ जाएंगे। और यदि हम इतना समझ गए तो हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है, एक तरह से हम जिस संसार में बंधे हुए हैं, ये जंगल की आग के समान है। संसार दावा नल लीला लोका तृणय कारुण्य घना घनात्वम। तो यहाँ पे कोई भी नॉलेज काम में नहीं आएगी। जंगल में जो आग जब लगती है उसको कोई बुझा नहीं सकता जब तक स्वयं बादल आके बारिश ना करें। और वो बादल क्या है, यहाँ पे जो बादल बताया गया है वो बताया तृणय कारुण्य। भगवान जो गुरुदेव हैं उनका जो कारुण्य है, दया है, दया दृष्टि करते हैं वो बद्ध लोगों के लिए। बद्ध लोगों पे दया करके वो हमारे लिए भगवद गीता लिखते हैं, वो हमारे लिए लेक्चर्स देते हैं। और यदि हम फिर भी इसको पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हमसे बड़ा जो है दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं होगा। भगवद गीता मौजूद है, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स मौजूद हैं, संत बहुत सारे ऐसे हैं जो शुद्ध हैं, सारा ज्ञान जानते हैं। अगर हम उनकी शरण में नहीं जाते और अपने आप में ही लगे रहते हैं, विषय भोग में ही लगे रहते हैं, तो हमारा ये जो जीवन है ये भी नर्क में होता है और आने वाला जो जीवन है वो भी नर्क में होता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए हमें हर हाल में भगवद गीता पढ़नी चाहिए और पढ़ते हुए अब हमें श्री गुरु की चरण में भी जाना चाहिए। जो श्री गुरुदेव की दया रूपी जो वर्षा है बद्ध जीवों के लिए, वो इस कारण से इस जगत में आते हैं ताकि वो सारे बद्ध जीवों को, जो बद्ध जीव जो विषय भोग में लगे हुए हैं, उनको यहाँ से निकाल के, इस केज में से निकाल के परमेश्वर तक लेके जाएं। इसलिए हमें सच्चे गुरु को तलाश करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मटेरियल एडवांसमेंट, ये वास्तव में हमारी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, राज्यम सुराणाम अधि चापिवत्यम, मतलब जो राज्य का मतलब ये धरती का छोड़िए, अगर उनको स्वर्गलोक का भी राज्य दे दिया जाए तो भी वो इस इंद्रिय जो जिनको जला रही है उसको रोक नहीं पाते। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इंद्रिय विषय भोग की तरफ पढ़ेंगे तो ये इंद्रियां हमें जलाकर खाक कर देंगी। और यदि हम अब परमेश्वर की सेवा में अपने आप को लगाएंगे तो हमें इन सारी इंद्रियों से स्वतः अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंद्रिय स्वतः आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और हमारे जंगल की आग वो किस कारण से, सबकी इंद्रियां अनकंट्रोल हो रखी हैं, सबकी इंद्रियां किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी अनकंट्रोल अवस्था में जंगल की आग को रोक पाना असंभव टास्क है। इसको सिर्फ गुरु ही रोक सकते हैं, गुरु के प्रवचन रोक सकते हैं। इसलिए हमें सदैव सच्चे गुरु को तलाश करना चाहिए ताकि हम हमारी जो आध्यात्मिक जो उन्नति है उसको आगे बढ़ा सकें और हमारे जितने भी प्रश्न हैं, हमारे जितने भी कन्फ्यूज़न है उनको दूर कर सकें। क्योंकि तभी होगा जब हम एक सच्चे गुरु के पास जाएंगे। तो सच्चे गुरु को पहचाने कैसे, जैसे मैंने अपने पिछले वाले श्लोक में बताया था कि जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, तो वो हमेशा ब्रह्म में निष्ठ रहेगा, 24 घंटे श्री कृष्ण के विषय में ही एकदम व्यस्त रहेगा 24 घंटे, वही वास्तव में गुरु है। पर शास्त्रों में लिखा है, षट कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वयं पचो गुरु। यदि कोई चांडाल फैमिली में भी पैदा हुआ है तो भी अगर उसको श्री कृष्ण को जानता है, वैष्णव है, वैष्णव मतलब होता है जो विष्णु को पूजता है, विष्णु को ही परम मानता है, अगर वो वैष्णव है तो वो गुरु बना सकते हो आप उसको। लेकिन एक जो व्यक्ति है जो कर्मकांड सारे श्लोक याद रखता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन वो वैष्णव नहीं है तो उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। अवैष्णवो गुरु न स्यात्। तो गुरु वही है, किबे विप्र किबे न्यासी शूद्र किबे वे, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। तो जो भी श्री कृष्ण को जानता है वास्तव में वही गुरु है। इसलिए हमें सदैव सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए, वो क्योंकि वो हमारी जो रियल प्रॉब्लम्स है, हमारी जो ज़िंदगी की है उसको सॉल्व कर सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को। और हमें ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है इससे बाहर निकाल सकता है। यदि वो एक पारंपरिक, एक जैसे बोलते हैं ऑथराइज परंपरा में आ रहा है तो वो हमारी सारी जो कष्ट हैं, हमारे जो सारी जो इसमें हम बंधे पड़े हैं, इस संसार में बंधे पड़े हैं, उससे हमें बचा सकता है। तो आज का लिव गीता मैसेज यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है वो मनुष्य को रियल हैप्पीनेस नहीं दे सकता, उसकी रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को सॉल्व नहीं कर सकता। अब आप देखेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वास्तव में जो वास्तविक दुख है वो यही है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जब कोरोना आया, कोविड काल आया तो डेवलप से डेवलप्ड कंट्री को भी ग्रस्त करा और डेवलपिंग पुअर से पुअर कंट्री को भी ग्रस्त करा। तो ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री बीमार नहीं पड़ेंगे, डेवलप कंट्री में जो बूढ़े नहीं होंगे, डेवलप कंट्री में जो उनकी डेथ नहीं होगी, ये सब जगह होगा, इससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए इसको बचने से, इस मृत्यु चक्र को बार बार रोकने का एक ही रास्ता है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उससे हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन सफल होता है और वास्तव में जो जीवन जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, जरा व्याधि, इसको हम रोक सकते हैं। और जो वास्तव में रियल प्रॉब्लम्स भी यही हैं। और जो हैप्पीनेस जो है, रियल हैप्पीनेस हमें कब मिलेगी, जब हम जो है अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। अगर हम इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगा के विषय भोग में लगाएंगे तो हो सकता है उससे इंस्टेंट सुख हमको मिले, लेकिन आगे जाके वो हमें दुखी देगा,
हम इस भव बंधन पे बंधते चले जाएंगे। यज्ञार्थ कर्मणो अन्य लोकोयम कर्म बंधना। जैसे जैसे हम विषय भोग के लिए कर्म करेंगे वो कर्म बंधन हमको बांधता चला जाएगा और फिर उससे बाहर निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। यदि हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएंगे तो धीरे धीरे करके हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं उसमें भी शुद्धिकरण होगा और वो शुद्ध हो जाएंगी तो एक तरह से हमें रियल हैप्पीनेस का महसूस होगी। व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस? इसलिए हमारे वेदों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबसे पहले धर्म को सीखना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए, फिर हमें अर्थ, काम और बाद में मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसे करके हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल रहेंगी और जब इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, अगर आप इंद्रियों के गुलाम हैं तो ये इंद्रियां आपको नरक तक लेके ही जाएंगी। इसको इतनी बलवरता इंद्रियाणी प्रमातिनी हरंती परस्पम बना, बहुत स्ट्रांग है। और यदि हम इसको एक बार कंट्रोल में कर लेते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज से तो ये जो इंद्रियां हैं हमें सुख तक भी पहुंचाती है, श्री कृष्ण तक भी पहुंचाती हैं। इसलिए हमें सदैव इंद्रियों को है श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, उसमें ही व्यस्त रखना चाहिए। तो उससे हमें जो खुशी को हम अनुभव कर पाएंगे वो वास्तविक खुशी होगी। अभी हम जो खुशी महसूस कर रहे हैं वास्तव में वो क्या है, दुखों से बचने का प्रयास है मात्र, और दुखों से बचने के प्रयास को ही हम खुशी मान बैठे हैं। रियल हैप्पीनेस अभी तक हमने महसूस ही नहीं की है। तो एक बार यदि हम रियल हैप्पीनेस महसूस कर लेंगे तो उसके बाद हमारी जो आध्यात्मिक नॉलेज है वो एकदम अडिग हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। इसलिए रियल हैप्पीनेस के लिए, रियल शांति के लिए और मानव समाज में शांति स्थापित करने के लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। और बिना उसकी प्राप्ति के, बिना स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति के अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रह सकें, हम अच्छे से डेवलप हो सकें, ये सब एक तरह से बिना बेस के मकान बनाने जैसा है जो कभी भी किसी वक्त गिर सकता है। इसलिए अगर हमारा बेस स्पिरिचुअल है तो हमारी जो नींव जो है वो स्पिरिचुअली डली हुई है, उसके ऊपर अगर हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो कभी भी गिरेगा नहीं। और इसके विपरीत हम जैसे ऊपर कुछ भी बनाए जा रहे हैं, कितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज में जीरो हैं तो हम कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी हमारा पतन हो सकता है। इसलिए हमें सदैव परमेश्वर की राह पे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज को लेना चाहिए और इंद्रियों की गुलामीता को त्याग के श्री कृष्ण के स्वामित्व को स्वीकारना चाहिए। हरे कृष्णा। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा आज का भजन सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो संगति पे विशेष जोर दे रहे हैं कि हमें जो हरि विमुख हैं उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। हमें सदैव जो हरि जो भक्त जो हैं, प्रभु के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी ही संगति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि संगति का बहुत महत्व है। संगत से गुणात है, संगत से गुण जात। यदि हम हरि विमुखों की संगति करेंगे तो हम धीरे धीरे खुद स्वयं हरि विमुख हो जाएंगे। इसलिए हमें सदैव संगति पे विशेष ध्यान देना चाहिए और हमेशा ऐसे ही भक्तों की संगति करनी चाहिए जो प्रभु सेवा में सदैव से लगे हुए हैं। तो ये भजन इसी भाव को लेते हुए प्रस्तुत है। तजो मन हरि विमुखनि को संग, तजो मन हरि विमुखनि को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजो मन कहा होत पै पान कराए, कहा होत पै
जगहि कहाँ कपूर चुगावे, स्वान नहावे गंग तजो मन। खर को कहाँ रग जालेपन, खर को कहाँ रग जालेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहाँ सरित हनवाए, गज को कहाँ सरित हनवाए। बहुरी धरौ सब ढंग तजो मन। पाहन पतित बाण नहीं भेदत, पाहन पतित बाण नहीं भेदत। रीतौ करत निषंग, सूरदास कारी कमरी पर हो, सूरदास कारी कमरी पर। चढ़त न दूजो रंग तजो मन, हरि विमुखनि को संग तजो मन, हरि विमुखनि को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग तजो मन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,